are of two types, lyophilic and lyophobic. So now I'm going to discuss this one. कि on the basis of nature of interaction between DP and DM, colloidal solution are of two type, lyophilic and lyophobic. So first of all, what is the meaning of lyophilic? Means liquid loving. And what is the meaning of lyophobic? It means liquid hating. Liquid loving, liquid hating. Now, we will discuss the information about the lyophilic and lyophobic in this form. That is difference between lyophilic and lyophobic CS. So this information you can write as the properties of lyophilic, lyophobic, or difference between, because most of the time the question is there, you write the difference between lyophilic and lyophobic. That's why I'm going to discuss in this way. And this all is given in these two slides. Lyophilic में यहाँ पे दिया हुआ है, lyophobic में यहाँ पे दिया हुआ है. This all have summarized in this part. First, lyophilic, as you have seen, lyophilic word means liquid lover. So lyophilic is liquid attractor and lyophobic is liquid hater. Okay. Next, because lyophilic is liquid attractor, so lyophilic colloidal solution is formed by just a simple shaking of DP and DM together. Means हम DP और DM को एक कंटेनर में ले लें और उसको केवल सेक कर देंगे, they will be mixed together properly and form the lyophilic colloidal solution or lyophilic salt. So lyophilic colloidal solution not require any special method, any specific way. It just formed by simple shaking of DP and DM together in a common container. एक सेम common container में दोनों को fill करेंगे और दोनों को shake कर देंगे एक दूसरे के साथ. But lyophobic require a specific method. Lyophobic को बनाने के लिए specific method चाहिए होता है. Means when we take the when we take the DP and DM together in a container and shake it, then after few time they both will be separated out, so colloidal solution will not form. So for that we require any specific method to form that solution. उस solution को बनाने के लिए हमको कोई एक specific method चाहिए होता है, and that's why it is written कि lyophobic require specific method. Next one is there कि lyophilic is also called reversible salt. लायोफिलिक को रिवर्सिबल सॉल्ट कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट because on this point the question is formed, which I will discuss here in note. Next slide. So lyophilic salt is called reversible salt. Lyophilic colloidal solution is called reversible salt and lyophobic colloidal solution is called irreversible salt. Lyophobic colloidal solution को irreversible salt कहते हैं. नेक्स्ट, लायोफिलिक एज यू नो, आपको कहा गया लिक्विड अट्रैक्टर. तो लायोफिलिक क्योंकि ये किसके बेसिस पे है? दिस क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम. सो डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन कैसा है? सो लायोफिलिक इज हैविंग, ठीक है, मोर इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन डीपी एंड डीएम. लायोफिलिक में डीपी और डीएम के बीच इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई वहां पे लिखा हुआ है लिक्विड अट्रैक्टर. एंड इन लायोफोबिक द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम इज लेस. नेक्स्ट, lyophilic is having interaction force high and it can be formed by simple shaking of DP and DM. So it is a stable salt. It not require any third component to mix there to form the lyophobic CS. वहां पे कोई तीसरा lyophilic CS, वहां पे केवल डीपी और डीएम को मिक्स करके उसको सेक करने से ही लायोफिलिक बन जाता है. उसके लिए हमको कोई तीसरा कंपोनेंट ऐड करना नहीं होता है. सो दैट थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एजेंट. यहाँ कह रहा है कि इट नॉट रिक्वायर एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट. इसको किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है. बट
लायोफोबिक जैसा मैंने आपको बताया कि when we will take both of them together and we will shake them, then after few times they both will be separated out to make them stable, make them mix with each other. We require a third agent or substance or component that is called stabilizing agent. तो इसमें हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, बट लायोफिलिक इज नॉट रिक्वायर एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट, लायोफिलिक इज स्टेबल सॉल्ट, क्योंकि इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, ये स्टेबल सॉल्ट है. स्टेबलाइजिंग एजेंट इसलिए इसको नहीं चाहिए क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता है. एंड लायोफोबिक इज unstable salt because it becomes separate out after few times and after some period of time, and we require stabilizing agent to stable this, so it is unstable. Example of lyophilic, that is starch salt, gelatin salt and gum salt. मतलब स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन का कोलाइडल सॉल्यूशन और गम का कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट आर कॉल्ड, ठीक है, दैट आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन. एंड गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, दैट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन. उनको लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. सो इन योर एक्सरसाइज one question is there कि how many types of colloidal solutions are there on the basis of interaction force, explain or define them with one example of each. तो ये आपका हो गया और इसके साथ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, the question which is coming, the very important question, why lyophilic colloid is called reversible salt and why lyophobic colloid is called irreversible salt. लायोफिलिक कोलाइड को रिवर्सिबल सॉल्ट क्यों कहते हैं एंड लायोफोबिक कोलाइड को रिवर्सिबल सॉल्ट, इरिवर्सिबल सॉल्ट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है. देन रिमेंबर, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को रिवर्सिबल सॉल्ट क्यों कहते हैं. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन से, कि हमारे पास लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है. नाउ when we separate the DP and DM of these lyophilic colloidal solution, अगर हम इस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का DP और DM अगर हम सेपरेट कर दे किसी तरीके से, दैट इज कोगुलेशन करा दें, then when we will mix them together, then by simple shaking we will get the colloidal salt again. मतलब हम कोलाइडल सॉल्ट लें, उस कोलाइडल सॉल्ट में से डीपी और डीएम को अलग कर दें और फिर उनको ले करके केवल मिक्स करके सिंपल शेकिंग कर दें तो वो वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. तो कोलाइडल सॉल्यूशन लिए, अलग किए और वापस से मिक्स कर दिए, वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया. नो एनी कंडीशन इज रिक्वायर्ड, देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट. ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि इसको केवल सिंपल शेकिंग से बना ले रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन के डीपी और डीएम को अलग करके वापस से सिंपल शेकिंग से मिक्स कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्सिबल सॉल्ट. और लायोफोबिक में आपको पता है कि स्पेसिफिक मेथड चाहिए. सो अगर हम लायोफोबिक के डीपी और डीएम को अलग कर देंगे, इफ वी विल सेपरेट द डीपी एंड डीएम ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन and then again we will mix them together by simple shaking, then they will not mix together and not form the colloidal solution again. तो वापस से मिक्स नहीं होंगे और वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे. So that's why it is called irreversible salt. तो ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम कि why लायो called reversible salt and why lyophobic colloids are called irreversible salt. लायोफिलिक को रिवर्सिबल क्यों कहते हैं एंड लायोफोबिक को इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं. तो आपको ये लिखना है. अगर एक क्वेश्चन आएगा या लायोफिलिक या लायोफोबिक, तो इफ लायोफिलिक इज देयर यू विल से कि बिकॉज when we separate DP and DM of this salt, then by any means, then
they both are mixed together by simple shaking and form the colloidal solution again. And in lyophobic colloidal solution, because when we separate DP and DM of this salt by any means, then they are not mixed together by simple shaking and not form the colloidal solution again. Now next, the third basis. This basis is over. This basis is over on the basis of interaction. But the third basis, on the basis of particle size of DP, देखिए इसको तीन तरीके से लिखता है. On the basis of particle size of DP, maybe अभी जो मैं स्लाइड दिखलाऊंगा उसमें लिखा होगा on the basis of type of DP, एंड जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में उसमें लिखा हुआ है on the basis of nature of DP. तो या तो पूछे on the basis of size of DP, same on the basis of type of DP, same on the basis of nature of DP, same. DP means dispersed phase. So on this basis, how many types of colloidal solutions are there? Three types: multimolecular, macromolecular, and associated. Multimolecular, macromolecular, and associated colloidal solution. So now we are going to discuss these three types, and I want to inform you these three types were given in this year board examination, whose result were out yesterday, that 1920 batch examination. Means this year March month question paper contain this question, and three sets of question paper are coming in board examination. One set contain the one that is explain the multimolecular colloid with one example, and the second set contain the second, explain the macromolecular colloid with one example, and third set contain the third, explain the associated colloid with one example. So remember this, on the basis of particle size was present in this year board examination. So maybe next year this will be again, or maybe lyophilic, lyophobic will be there. So now I'm going to discuss, that is on the basis of, okay, type of or nature of, okay, or size of DP particle. So on this basis there are three types: multimolecular, macromolecular, and I had by mistake written here associative, that is associated. ये associative नहीं है, this is associated. ठीक है. Now multimolecular colloids, multimolecular colloid की बात करें फर्स्ट वाले की. ठीक है. सो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए. देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है मल्टीमोलिकुलर, मींस मेड ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल. ठीक है. द पार्टिकल इज मेड ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल. इफ यू विल रिमेंबर द definition, then in this definition I informed you the dispersed phase may be consist of particle of a single macromolecule or aggregation of atoms आ रहा है. मतलब वो एक लार्ज पार्टिकल भी हो सकता है या छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के एक लार्ज पार्टिकल भी बना सकते हैं. सो जो मल्टी मॉलिक्यूलर दैट इज दिस टाइप, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के लार्ज पार्टिकल बनाते हैं. This is multimolecular. So same information is giving this कि that colloidal solution, आपको क्या करना है, that colloidal solution whose particle size is having less than 1 nm. आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा वो मैं बतला रहा हूँ कैसे आपको लिखना है. इफ यू वांट टू राइट द सेम एज स्टेटमेंट इज गिवन, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक या अपने लैंग्वेज में, कि that colloidal solution in which the particle size means dp size is less than 1 nm. इसकी साइज 1 nm से ज्यादा कम होती है, बट by aggregation these are comes in the size of 1 nm to 1000 nm. एग्रीगेशन के बाद ये मिलकर के एक लार्ज बना लेते हैं. सो कम्स इन 1 nm to 1000 nm साइज. मतलब ये कहने का है कि एग्रीगेशन कराने के लिए वी नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मेथड. मतलब ये कहने का है कि अगर उनके पार्टिकल की साइज, एक पार्टिकल की साइज अगर हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है,
तो वो आपको बताएगा कि वो 1 nm से कम साइज है। लेकिन जैसे ही वी आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर सोल्यूशन, हम उनका सोल्यूशन बनाने के लिए उनको ऐड करते हैं, तो जैसे ही वो अपने सेकेंड स्पीसीज में इंटर करते हैं, दे आर स्टार्ट एग्रीगेशन। आपको एग्रीगेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनका नेचर ही ऐसा है कि दे स्टार्ट टू एग्रीगेट। और जैसे ही एग्रीगेट होते हैं, दे फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल, और लार्ज पार्टिकल जैसे बनाते हैं, दे कम्स इन द रेंज ऑफ 1 mm to 1000 mm। 1 mm से 1000 mm के रेंज में जैसे आते हैं, दे आर फॉर्म द कोलाइडल सोल्यूशन। तो वो जब भी कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे, वो कोलाइडल सोल्यूशन आपका जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट विल बी कोलाइडल सोल्यूशन, नॉट ट्रू सोल्यूशन। वो ट्रू सोल्यूशन बनाते ही नहीं है। इसमें आपको मैं ये नहीं कह, आई एम नॉट सेइंग कि वी रिक्वायर एनी थर्ड कंपोनेंट टू एग्रीगेट देम। हमको उनको थर्ड कंपोनेंट नहीं ऐड करना है कि वो एग्रीगेट करें। वी नॉट रिक्वायर टू ऐड एनी थर्ड कंपोनेंट, दैट इज देयर नेचर। उनका नेचर ऐसा है कि वो जैसे ही मिलाए जाएंगे, दे विल फॉर्म, ठीक है, दे विल फॉर्म द कोलाइडल सोल्यूशन। फिर उनकी साइज देखी गई तो पता चला कि साइज तो इनकी 1 mm से छोटी होती है। देन हाउ दे आर फॉर्मिंग द कोलाइडल सोल्यूशन, व्हाई दे आर नॉट फॉर्मिंग द ट्रू सोल्यूशन। ये ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं बना रहे हैं, ये क्यों कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। तब जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हुआ, तब पता चला वो ट्रू सोल्यूशन इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जैसे ही वो सेकंड स्पीसीज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, दे आर अंडरगो एग्रीगेशन, दैट इज देयर नेचर, कि वो एग्रीगेशन खुद कर रहे हैं। एंड एग्रीगेशन करके दे कन्वर्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल whose size is 1 mm to 1000 mm, and they form the colloidal solution, और वो colloidal solution बना रहे हैं। So this is about the multi-molecular colloid, कि that colloidal solution whose particle size is less than 1 nm, but due to aggregation they comes in the size of 1 mm to 1000 mm and form the colloidal solution, और colloidal solution बनाते हैं। This is about the multi-molecular CS. Wait a minute, मैं 1 मिनट में आपका फिर से आ रहा हूँ। Sorry for this. Abhay, can you tell me voice is clear? Abhay, Gaurav, Yes, sir, clear. okay. Sorry for this interruption. So we were discussing about the multi-molecular CS. So I informed you multi-molecular, as the name is saying, कि their one particle is not made of single particle, their one particle is made of more than one particle. That's why it is called multimolecular. So how you will write this? Your heading will be multimolecular colloid, and you will say that type of colloidal solution whose particle size is less than 1 nm, but due to aggregation के कारण they
form a large molecule, a multi-molecule whose particle size comes in the range of 1 nm to 1000 nm. इसकी particle की size 1 nm से 1000 nm के बीच में आ जाती है, and they form the colloidal solution. Now example of this, तो example is metal salt. कोई भी metal salt, salt word याद रखिएगा, salt. सॉल मीन सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं है. सॉल वर्ड मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है. व्हेन डीपी इज सॉलिड, डीएम इज लिक्विड. सो सॉल, so any metal salt will be there. Metal salt, gold salt, silver salt, platinum salt. Three names are in your syllabus. Gold salt, silver salt, platinum salt. मतलब गोल्ड जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, सिल्वर जब बनाते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, और प्लैटिनम जब बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है. सो दीज थ्री आर belong to multi molecular. इनके पार्टिकल की साइज छोटी होती है, but they comes in the range of this and form the colloidal solution. And one more example is there, sulfur salt. सल्फर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट रहेगा. ठीक है. सल्फर सॉल्ट आप सामने दिख रहा है कि इसके एक पार्टिकल में सल्फर के 8 मींस 8 एटम्स आर अटैच इन वन पार्टिकल. तो एटम की साइज तो छोटी हो गई, बट ड्यू टू aggregation of atoms they form a large particle, and that large particles are formed the multimolecular CS. So this is about the multimolecular colloidal solution. And previous year in UTs and PIVO this type of questions are there. कि ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट नाम से ही आए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि which type of colloidal solution is formed, या which type of colloidal solution is sulfur salt. सल्फर सॉल्ट किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, then you need to write there multi-molecular colloidal solution. सल्फर सॉल्ट जो है ये multi-molecular colloidal solution है. वेट अ मिनट. हेलो हेलो हेलो. हाँ हेलो. हाँ भैया कहाँ पर हैं? दुर्गा मंदिर से किधर, पांडेपुर साइड में जा रहे हैं कि चौका घाट? अच्छा, तो आप दुर्गा मंदिर से तो आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको जो है ये देखें राजपूत मेडिकल. हाँ पांडेपुर की तरफ आप, मतलब वहां से मुश्किल से आपको बता रहे, देखिए दुर्गा मंदिर आप पीपल के पेड़ के नीचे हैं इस समय. हेलो, आप पीपल के पेड़ के नीचे इस समय हैं. तो आप वहां से मान लीजिए कि थोड़ा सा आगे आएंगे तो चंद्रा रेजिडेंसी है, वहां से आप एक उसके बगल में एक मोबाइल वगैरह की दुकान होगी, उसके बगल में बनिए की दुकान होगी, उसके आगे फिर धोबी वगैरह की, फिर हलवाई की होगी, फिर उससे 2 दुकान आगे आएंगे तो राधे कृष्ण ज्वेलर्स है. राधे नहीं, उसी साइड है राधे कृष्ण ज्वेलर्स. उसी के ठीक अपोजिट साइड में आप देखेंगे इस पटरी में तो पीसीओ का एक केबिन लगा होगा, और ऊपर लगा होगा बोर्ड चौरसिया पीसीओ सेंटर करके. आप एक्चुअली आप आइए आप बस वहां से ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको बता रहे हैं, बस जितना है ना उतना ही आइए. ये देखिए अमेजोन वाले आए हैं, वो बाहर हैं. एड्रेस दुर्गा मंदिर के पास है, उनको बता दीजिए राधे कृष्ण ज्वेलर्स के सामने आ जाए. हाँ उठाए बाहर, पैसा होगा लेकिन ध्यान से. उधर से आ रहे हैं दुर्गा मंदिर, राजपूत मेडिकल, राधे कृष्ण ज्वेलर्स, कहीं आइए हम देख. Sorry for interruption again to everyone. Now next one is there, that is macromolecular CS, macromolecular colloidal solution. So macromolecular colloidal solution, so its name is already there, macromolecular. Macro means large particle. So here I informed you in colloidal solution कि that may be a single large molecule और aggregation. तो एग्रीगेशन वाला मल्टी बना रहा है तो सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल रहता है whose size is already 1 mm to 1000 mm. तो वो होता है क्या, that is macromolecular CS. So how you will write this
कि मैक्रोमोलिकुलर सीएस किसको कहते हैं, से दैट कोलाइडल सॉल्यूशन whose particle size is 1 nm to 1000 nm, जिनके पार्टिकल की साइज 1 nm से 1000 nm ही होती है, उससे छोटी होती नहीं होती है। उस पार्टिकल साइज इज 1 nm to 1000 nm, जिनके पार्टिकल की साइज 1 nm से 1000 nm होती है, ठीक है, दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर सीएस, उनको मैक्रोमोलिकुलर सीएस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर सीएस, तो मैक्रोमोलिकुलर सीएस आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। Some of them are naturally occurring macromolecular CS and some are artificial or man-made macromolecular CS. Naturally occurring molecular CS अगर बात करेंगे macromolecular CS, तो उसके एग्जाम्पल है स्टार्च, स्टार्च नहीं स्टार्च कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, यानी स्टार्च का कोलाइडल सोल्यूशन, सेलुलोज सॉल, प्रोटीन सॉल, आपको सब में सॉल लगाना है, एंजाइम सॉल, ठीक है, नॉट ओनली स्टार्च, स्टार्च इज, ठीक है, द मैक्रोमोलिक्यूल, और जब इससे कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सो दैट विल बी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, एंड मैन मेड में पॉलीथीन सॉल, नायलॉन सॉल, पॉलीस्टाइरीन सॉल, सिंथेटिक रबर सॉल, दीज आर द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन, natural and man-made. Third one is associated. This one is very important. अब associated में important क्या है, तो associated में important ये है कि same solution में same substance is behaving in two way, same substance दो तरीके से behave करता है, this is the important in this associated। अभी आपने देखा मैक्रो में साइज बड़ी थी, मल्टी में साइज छोटी थी, बड़ी छोटी तो हो गई। अब एसोसिएटेड में साइज से रिलेशन नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड विद साइज, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, इट इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस सब्सटेंस वही है, उसी सब्सटेंस को एक डीएम में, लाइक वाटर में ही, वाटर ही क्या है, डीएम है, डीएम में ऐड कर रहे हैं। अगर थोड़ा अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, मींस व्हेन कंसंट्रेशन इज लेस, जब अमाउंट उसका कम है, तो इट बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशन, तब ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, मींस वॉल्यूम उतना ही अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, देन स्टार्ट टू बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन, तब ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग रहा है। सो एसोसिएटेड क्या कर रहा है कि दोज सब्सटेंसेस whose solution at low concentration behave as strong electrolyte, जिनका solution low concentration पे strong electrolyte की तरह behave करता है, but high concentration पे start to behave as colloidal solution, जैसे ही concentration high होता है वो colloidal solution की तरह behave करने लगता है, that are called associated colloids। So once again, those colloidal solution which are so dual property, dual nature, या कहिए those substances whose low concentration solution is behave as a strong electrolyte and high concentration solution is behave as colloidal solution, that are called associated colloids। फिर क्वेश्चन पूछता है कि what is happening in this concentration की at low concentration they are behave as strong electrolyte and at high concentration they start to behave as colloidal solution। So at low concentration, जब concentration कम होता है, they are undergo dissociation, तब वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, डिसोसिएशन। किस प्रोसेस में जाते हैं, डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के बाद वो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, एंड आयंस आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बट व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस, वॉल्यूम वही है, अमाउंट बढ़ रहा है, सो आफ्टर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन द आयंस आर स्टार्ट
to aggregate. Same types of ions are start to aggregate. सेम टाइप के आयन जो होते हैं वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, एंड बाय एग्रीगेशन दे फॉर्म द लार्ज साइज पार्टिकल एंड देन दे स्टार्ट टू बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले जब कंसंट्रेशन कम होता है दैट टाइम दे अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म देयर ions, that's why they are behave as electrolyte, but after a particular concentration or when concentration is increases the same type of ions are aggregate, and by aggregation they form a large particle. That large particle is now start to convert it into colloidal solution. तो पहले डिसोसिएशन होता है, बाद में एग्रीगेशन होता है. So this is written here, aggregation and dissociation मतलब इलेक्ट्रॉन. Now next इसी टॉपिक से रिलेटेड एक तो ये हो गया एसोसिएटेड कोलाइड. एग्जांपल कि एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जांपल क्या है, जो इस साल क्वेश्चन आया था, तो एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन. इन योर एसोसिएटेड कोलाइड एग्जांपल इज सोप सॉल्यूशन इन योर सिलेबस. केवल सोप ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सो एग्जांपल विल बी सोप सॉल्यूशन. रिमेंबर दिस. ऐसे भी आ सकता है कि सोप इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देन योर आंसर विल बी, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड. Now next, the two terms related with associated colloid. The one term is here Kraft temperature TK. Another is CMC, critical missile concentration. So two terms are here, Kraft temperature and critical missile concentration. So अब ये दो टर्म पूछता है कि व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट इज CMC. शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. सो फर्स्ट इज क्राफ्ट टेम्परेचर. तो क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन दोनों का डेफिनेशन एक ही तरीके से है. जस्ट डिफरेंस क्या है कि अभी आपको बताया गया है कि लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है, बिहेव कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाई कंसंट्रेशन पे बिहेव कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं रहा, टेम्परेचर फिक्स है, बट इफ यू विल चेंज द टेम्परेचर देन कंसंट्रेशन अगेन विल चेंज. तो वही चीज कर रहा है कि दैट टेम्परेचर, दोनों में आपको एक ही तरीके से लिखना है कि दैट टेम्परेचर अबव विच या एट विच द solution start to behave as colloidal solution. That temperature at which और above which, जिस टेम्परेचर से या जिस टेम्परेचर के ऊपर जाने पे सब्सटेंस और सॉल्यूशन स्टार्ट टू बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, या एसोसिएटेड कोलाइड इज स्टार्ट टू बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट टेम्परेचर एट विच और above which associated colloid start to behave as colloidal solution, that is called what? That is called Kraft temperature. उसको Kraft temperature कहते हैं. या और तरीका है that temperature at which or above which the ions are start to undergo aggregation and behave as colloidal solution. वो टेम्परेचर जिस पर या जिससे ऊपर जाने पे जो आयंस होते हैं वो एग्रीगेट होने लगते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करने लगते हैं. दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, डिनोटेड बाय TK. या एक वर्ड यहाँ दिया मिसेल, आपने 10th में पढ़ा होगा सोप वाले में. सो ये भी कह सकते हैं मिसेल जब बनता है तभी वो कोलाइडल की तरफ बिहेव करता है, ये भी आपका एक कंडीशन है. तो ये भी कह सकते हैं that temperature at which or above which micelle start to form, मिसेल बनना शुरू हो जाते हैं. मिसेल भी आपको पता है कि जो सोप होते हैं, सोप पार्टिकल का जो निगेटिव वाला आयन होता है वही आयन कंबाइन होकर के क्या बनाता है, मिसेल बनाता है. ये आपको पता है कि एनायंस ऑफ सोप पार्टिकल्स आर एग्रीगेट एंड फॉर्म मिसेल at a certain concentration. तो वही कह रहा है कि that temperature at which or above which micelles are start to form, that are called Kraft temperature.
टेम्परेचर के लिए ये हो गया। और CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर की जगह कंसंट्रेशन कहिए। दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एट विच और above which associated colloid start to behave as colloidal solution, एक हो गया। सेकेंड वे है that particular concentration at which or above which ions are undergo aggregation and form the micelles, मिसल्स बनाना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। या ऐसे कहिए दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एट विच, ठीक है, और अबव विच सॉल्यूशन इज स्टार्ट टू बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। So this is about the associated colloid. And the last information related to this, that is वो question I have seen 2 years back in UT कि write the CMC value of soap solution at this particular temperature like our room temperature, कि हम इस रूम टेम्परेचर पे उस सोप सॉल्यूशन की CMC वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितने कंसंट्रेशन पे वो मिसल बनाना शुरू कर देता है और कोलाइडल की तरफ बिहेव करने लगता है। देन दैट इज 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में जब इतना मोल सोप का डिजोल्व हो जाता, सॉरी इतना मोल सोप का आ जाता है, देन दे स्टार्ट टू फॉर्म मिसल एंड बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन, तब वो मिसल बनाने लगता है और कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, सो ये पूछता है कि व्हाट इज द CMC वैल्यू ऑफ सोप सॉल्यूशन, केवल इसी का पूछेगा, किसी और का नहीं पूछता है। व्हाट इज द CMC वैल्यू ऑफ सोप सॉल्यूशन, then your answer must be there 10 to the power -4 to 10 to the power -3 mole per liter. So this is about the classification of colloidal solution. So our first topic is over, classification